Hello and good afternoon. You're with DD News and DD India, and we are back with Dr. Speak, the show where we get you all your questions answered, be it any doubt related to COVID-19, any apprehension that you might have, or any other medical issue as well. You've got the numbers flashing at the bottom of your screen. You can call us up, and you can also connect with us on Twitter and Facebook with any and all of your medical questions related or not related to COVID-19, because this is a phase where health is extremely critical. You have to take really good care of yourselves, and we're here to help you with that endeavor as well. I'm Gautam and with me is Jaya. जी हाँ, ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, इसलिए इस वक्त आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो वो इस वक्त 63% से ज्यादा हो गया है। जी हाँ, 63%। अब तक 6,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना महामारी से, और यही हमारी भी कोशिश है कि कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग और भी ज्यादा मजबूत हो। और इसलिए हमारे साथ हमारे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर जीसी खिल्लानी, फॉर्मर एचओडी पल्मोनरी मेडिसिन एम्स, और डॉक्टर नीरू अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, उनके साथ भी हम संपर्क करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हमारे साथ वो भी जुड़ जाएंगे। Yes, let's start off with you, Dr. Gupta. In terms of how the numbers are right now in terms of the COVID-19 pandemic in India, how are you assessing it? Because we have a situation where the recovery rate is going up, but the number of cases that are coming up, the fresh cases that are coming up within 24 hours is also very high. Yeah, Gautam ji, you are right. If we look at the situation, it's a very difficult situation, because there are some who are getting the impression, like Delhi, that maybe the worst is over. But if we look at the country, we see new areas cropping up, and our numbers are consistently increasing. They are crossing 30,000 now. We are 1 million. So its number is going up. And another thing to keep in mind is, there are places which you used to think that they are doing well, Goa or Bangalore, Karnataka. Now Karnataka is appearing to be in a bad shape. So these kind of things will keep cropping up, and we must keep in mind that it is not only a situation peculiar to India, it is what we are seeing globally. When we entered July in the first week, we thought the worst was in June, and in June, the number of cases the world over were running into 1.5 lakhs, or close to that, 1 to 2 lakhs. And now we see in July they have crossed more than 2 lakhs. They are 2,30,000 every. So it is a global thing that we are seeing that the numbers are going up, and we should still be vigilant and careful and watchful, and never let our guard down any time. So it's a matter of concern, while at the same time we agree that the recovery rate and the numbers are improving, but we don't want the situation to get out of hand once again. डॉक्टर नरेश, लेकिन जिस तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करें, हम इतने लाखों के आंकड़ों की बात करते हैं, तो जो लोग इस वक्त इस जंग से लड़ रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं कि अब तक कोरोना से बचे रहें, उनके मन में जो डर है वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। डर के रहना, सामान को ध्यान से रखना, आप घर से बाहर नहीं जा सकते इतने दिनों से। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, कई लोगों ने अपने घरों से सीनियर सिटीजन्स को निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें तो मेंटली उनके ऊपर एक टोल ले लेता है। किस तरह से ये आंकड़ों से हमें डरना नहीं है, और जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, जो तमाम चीजें हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, उनको अपनी आदत में शुमार करना, लेकिन कितना मुश्किल है इसको सही मायने में अपनाना? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आप बुजुर्गों का देखिए और बच्चों का देखिए। अगर हम ये मान लें कि वो मार्च से लेके घर के अंदर ही रहेंगे, ये एक ऐसा तबका होता है जिसकी की रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर कोई बीमारी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो। और उनका स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो उन्हें करनी पड़ती है। तो उनके मन में स्वाभाविक, ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये मन में आएगा कि हम 4 महीने से क्या कर रहे हैं, ये क्या नंबर की बात कर रहे हैं। ऊपर से ये भी उनको दर्शाया जाता है कि जो नंबर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं,
और दुनिया में भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो मानसिक प्रभाव है वो शायद इस बीमारी से भी ज्यादा है, वो आगे निकल गया है। और मानसिक प्रभाव की वजह से उनकी सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या नहीं डिस्टर्ब हो गई है, जो कि शुरू में भी डिस्टर्ब हुई थी, मार्च अप्रैल मई तक बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन लोग कंट्रोल करते थे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने एक ऐसे हार्मोन्स दिए हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, और जो मार्च अप्रैल में आए और उनकी वजह से हम कुछ भी झेल सकते हैं, इंसान की ये शक्ति है। लेकिन अगर वो ज्यादा अरसे तक रहें तो वो झेलने के बजाय वो हार्म करने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए भी देखा जाए, ये एक मानसिक विषय बन गया है कि अब हम किस युग में आ गए हैं, किस समय में आ गए हैं, किस समाज में आ गए हैं, आगे क्या होगा। ये जो आगे क्या होगा और अनसर्टेनिटी वाली बात है, उसकी वजह से फियर और एंजाइटी भी आती है और स्ट्रेस आता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज है कि ये उनके मन में आ रहा है, और ये भी मैं कहूंगा कि और बच्चों के मन में नहीं, ये बड़ों के मन में भी आ रहा है। और ऐसी हालात में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं इतने बड़े हो गए हैं कि सरकार ने भी वेबसाइट पे और आपके मीडिया के द्वारा काफी इसको एड्रेस करने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ लोग उसको इस हालात में लेने की बजाय उस तरह ले जाते हैं और ये कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, बस ये कुछ नहीं है, अब हमें जीना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें उनके गार्ड डाउन हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, क्राउडेड प्लेस पे जाना बढ़ जाता है, और वो कुछ नहीं वॉच करते हैं। दोनों ही हालत जो है डिफिकल्ट है। जो लोग सीरियसली लेते हैं उनकी हालत भी मुश्किल हो जाती है, और जो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं उनकी हालत भी मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत में हमको बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है कि किस हद तक किसको निकलने दिया जाए और किसको नहीं निकलने दिया जाए। Definitely, it is difficult because that's what we're seeing in almost every household, especially where there are elderly and children. Difficult to tell them to take precautions all the time, not go out. That is a challenge, and one has to deal with it. And it's up to the individual, really, isn't it, Jaya? बिल्कुल। और घर में बच्चों को बांध के रखना, आप बाहर नहीं उनको ले जा सकते, पार्क में नहीं खेलने दे सकते, या कम, अब पार्क खुल गए हैं आप जा सकते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से आप मुंह पे हाथ ना लगाएं अगर आप खेल रहे हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो बाहर जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, मॉल जाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि उनको समझाना कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको 2 गज की दूरी रखनी होगी, मास्क ज़रूर पहनना होगा, और कोशिश करना हो कि हाथ सैनिटाइज करते रहे, खरीदे Yes, they ज़रूर। perhaps need to carry those small bottles that they can refill as well with the other sanitizers as well. But that makes a lot of sense. We have also got Dr. Neelu Agarwal with us. She is a senior consultant nephrology. Welcome to Dr. Speak, Dr. Agarwal. In terms of the kind of patients that you've had in the past and now in this COVID phase, have you been coming across patients with complications related to COVID as well in otherwise issues of nephrology? Dr. Agarwal, can you hear me? It seems Dr. Agarwal, we cannot get through to her at the moment, but clearly, I mean, we've seen how this disease has been infecting different parts of the body, different faculties, different senses as well, and it's difficult to figure out, which all organs can really impact as the disease progresses and takes further hold. बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलानी, फॉर्मर एचओडी पल्मोनरी मेडिसिन एम्स, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खिलानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। सर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं इस वक्त, उसी से आगे हम सवाल यहाँ पर लेंगे कि किस तरह से तमाम चीज़ें इस वक्त आपके पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही हैं। बीच में खबरें आ रही थी कि कोरोना डर को लेकर जो और बाकी एलिमेंट्स वाले पेशेंट्स हैं वो भी डर रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं आते, उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है उनकी परेशानी में। आपको किस तरह से प्रतिक्रियाएं इस वक्त मिल रही हैं कोरोना से खिलाफ जो जंग में हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे जो है ना संकट जैसे ना छट रहा हो, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि
दिल्ली की बात करूं मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही काम करता हूं, तो कोरोना की पेशेंट्स की संख्या इन पेशेंट एंड आईसीयू में धीरे धीरे कम हो रही है और लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं है जो 5 महीने पहले जिस तरह से हमारे पास ओपीडी में आते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और चीज पे भी आकर्षित करना चाहता हूँ, जो जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो है कि जो पेशेंट कोरोना से ठीक हो गए, सपोजिटली नेगेटिव हो गए या उनको 14 दिन बीत गए, उनको बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। सिर्फ ब्रेथलेसनेस ही नहीं, उनकी नींद की प्रक्रिया, उनको शरीर में दर्द, थकावट, शाम को बिल्कुल निढाल हो जाना और तरह तरह के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं और वो बहुत लोग वापस आ रहे हैं अपने सिम्टम्स को लेके हमारे पास। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन जहां तक कोरोना का प्रश्न है, दिल्ली में कम हो रहा है लेकिन देश के और भागों में बढ़ रहा है, तो इसलिए ये प्रक्रिया कहाँ जाके समाप्त होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे को लगता है कि भारत देश और भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वेल प्रिपेयर्ड है। जो हमारी जी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ केयर, द लेवल ऑफ केयर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज हैज इम्प्रूव्ड और हम उनको एक ऑप्टिमम के हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त आप अपने सवाल हमसे हमारे डीडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। ये सवाल यहाँ पर मोहन पूछना चाहते हैं राजधानी दिल्ली से। वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोरोना हुआ था और वो पॉजिटिव थे, उसके बाद वो ठीक हुए और उनको ठीक हुए अभी 1 महीने का वक्त हो चुका है। वो ये जानना चाहते हैं क्या उन्हें दोबारा हो सकता है कोरोना, या उन्हें अब बेफिक्र होने की जरूरत है, या वो अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें दोबारा हो सकता है कोरोना? डॉक्टर खिलानी हमारे साथ हैं। Dr. Khilani, if you can hear us, we just put out a question for you. Yes, Dr. पुराना Khilani. एक्सपीरियंस की बात करें, जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो दूसरी बार नहीं होता था। कई सारी वायरल बीमारियां हैं जो एक बार हो जाती हैं तो आप सोचते हो कि दुनिया जिंदगी भर के लिए अब ये बीमारी होने का चांस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में हम ये निश्चित नहीं है, क्योंकि जो इसका समय काल है अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पुरानी बीमारी है। कुछ ये सोचा जाता है कि ये एंटीबॉडीज जो इम्यूनिटी होती है शरीर में वो 2 तरह से होती है, एक सेल मीडिएटेड होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, वो कितने दिन तक रहती हैं शरीर में इसका हमें तय नहीं है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई कि 90 दिन के बाद शायद वो कम हो जाती हैं। तो इन महानुभाव के लिए ये समझना जरूरी है कि बिल्कुल आजाद ना हो जाए। ये नहीं सोचा कि आपको एक कवच मिल गया है कि आपको कोरोना बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा वैज्ञानिक माइंड ये कहता है कि चांसेस कि इनके कोरोना होने के बहुत कम है या शायद नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि ये वो भी एहतियात बरते एज इफ इनको कोरोना कभी नहीं हुआ। यही इनके लिए सलाह। तो आपको कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोरोना को एक बार हराया है तो यकीनन आप एक कोरोना वॉरियर हैं और आप आगे भी इसी तरह से कोरोना को हराएंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतते रहना है और इसी तरह से जिस तरह से पहले आपने कोरोना को हराया आगे भी अपनी इस लड़ाई को जारी रखना है। Okay, we're told that we're joined by Dr. Neeru Agarwal as well. She's a nephrologist. Dr. Agarwal, welcome to the show. Just wanted to ask you, in terms of COVID-19, this pandemic period, has the profile of your patients, have they had any other difficulties apart from their usual difficulties due to being afflicted by COVID-19? Is there any sort of a nephrological manifestation of this disease as well? हेलो, नमस्कार। Namaskar. Am I audible? Yes, you are. Go ahead. So the question was nephrological manifestations of COVID disease, right? अच्छा, इसमें 2 तरह से मैनिफेस्टेशन है। कोविड डिजीज की वजह से एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो रही है कुछ पेशेंट्स को, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर है, उनके यूरिन में प्रोटीन जा सकता है, उनके यूरिन में ब्लड जा सकता है
और कभी कभी यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, और जिसमें हम CRRT पेशेंट्स की कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं, उनमें भी कोरोना हो रहा है, और ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हैं। डायलिसिस उनकी भी होती है, लेकिन उनके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो नॉर्मल जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा सीवियर हैं, और उनमें थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स की, साइटोकाइन स्टॉर्म की इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, और मोर्टेलिटी रेट भी इन पेशेंट्स में और ज्यादा हाई है, एज हाई एज 40%। ओके जी डॉक्टर अग्रवाल, एक ही सवाल यहाँ पर आया है। तेजिंदर फरीदकोट से पूछना चाहते हैं कि उनकी वाइफ को हल्का बुखार था और गले में खराश थी और सर दर्द भी था, फटीक था, तो उन्होंने 1-2 दिन रुकने के बाद अपना कोविड टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया, लेकिन अब 4-5 दिन के बाद भी उनको सिम्टम्स बने हुए हैं और उनका अभी भी थ्रोट में इन्फेक्शन है, गला खराब है और थोड़ा फटीग है, बुखार अब चला गया है। तो क्या दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है या मन में अभी भी उनके ये डर है? जी, ऐसा है कि जो फर्स्ट 5 डेज में जरूरी नहीं कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तो अगर आपको हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन है, अगर आपको लग रहा है हाई सस्पिशन है, तो उस केस में ये अप टू 14 डेज ये मैनिफेस्ट कर सकता है पॉजिटिव। तो ऐसे में आफ्टर 5 डेज इन्हें कोविड का टेस्ट रिपीट कराना चाहिए, जो कि 14 दिन पे भी पॉजिटिव हो सकता है। कभी कभी इनिशियली नेगेटिव होता है, उसके बाद भी कुछ केसेस में पॉजिटिव देखा गया है। तो इसमें बेस्ट होगा कि आप अपने वहाँ पे फिजिशियन को, पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, और क्योंकि हाई रिस्क है, हाई सस्पिशन रेट है, तो आप इसका टेस्ट मेरे हिसाब से कराना चाहिए। जी डॉक्टर अग्रवाल, एक और हमें सवाल आ रहा है। वी आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इरफान खान हु इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट अ न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम द कोरोना वायरस। In general, usually, I'm saying the word usually, it doesn't spread to the baby. But 1 or 2 cases have been seen in Delhi itself where the transmission to baby has happened. तो इसमें न्यूबॉर्न के लिए जहाँ तक है, एज सच इन जनरल बच्चों में इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, यही सबसे ज्यादा इसमें प्रिवेंशन वाले जो उपाय हैं यही हमें करने हैं। जैसे आप बाहर से आ रहे हैं तो बेबी को डायरेक्टली टच नहीं करिए, आप पहले सोप से वो अपने हाथ साफ करें या सैनिटाइजर से करें, उसके बाद बेबी को टच करें, उसको फेस पे बार बार किस नहीं करें, बार बार उसके फेस को, जो चीज आप अपने लेके, आपको अपने फेस पे टच नहीं करना है, आपको बार बार अपना नोज पे हाथ नहीं ले जाना है, उसी तरह बेबी के फेस पे बार बार टच ना करें। दीज आर द बेसिक थिंग्स। प्लस जो भी चीज है वो क्लीन होनी चाहिए, उसको रीयूज ना करें। बेबी के लिए जो भी चीज यूज करें वो फ्रेश हो, वॉश्ड हो, क्लीन हो। जी, और बेबी को मास्क तो लगा नहीं सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसलिए आपको मास्क लगाना जरूरी है कि जो भी बच्चे के पास है वो लोग मास्क का यूज करें। बिल्कुल, तो आप उससे दूरी बनाए रखें और एहतियात बरतें, उसको ज़्यादा छुएं ना अगर आप बाहर से आए हैं। और राजू दामोदरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी, अपना सवाल पूछिए राजू। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग बहुत पैनिक है, तो उसमें ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, कोई बोलता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो, कोई बोलता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, तो करना क्या है एक्चुअली, किस जगह पे जाना है एक्चुअली? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो आज होम्योपैथी या आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे, बट हम डॉक्टर खिलानी से पूछ लेते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। डॉक्टर खिलानी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, ऐसे है कि हम हर पद्धति का आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी करते हैं तो हमें होम्योपैथी या आयुर्वेद के लिए नहीं है, लेकिन ये हमें समझना है कि ये कोरोना की बीमारी का आज तक भी हमारे पास न तो इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है, जिसको लेबल दवाई कहते हैं, कि जिसको हम कहें कि भाई ये दवाई इफेक्टिव है, कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल दे दिया, टीबी की बीमारी है तो एंटी ट्यूबरकुलर दे दिया तो वो मरीज ठीक हो जाएगा। इस तरह से कोरोना के लिए हमारी पैथी में, दैट इज एलोपैथी में, कोई श्योर शॉर्ट इफेक्टिव दवाई हमारे पास अभी भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है। इसीलिए ये सारी बहस है कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन है, वो ही इलाज है। हमारी पद्धति में ये है कि डायग्नोसिस, जो कि जिसकी भी सेंसिटिविटी अभी सिर्फ 70% ही है, अगर नेगेटिव आता है तो भी ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोरोना डायग्नोज हुआ है तो मौत की दर कैसे कम करनी है, कॉम्प्लिकेशन की दर कैसे करनी है,
उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करने हैं, किस तरह से ऑक्सीजन देनी है, प्रोन पोजीशन करनी है, वो हमारी पद्धति में है। आयुर्वेद की दवाइयां बहुत सारी प्रचलित हुई हैं, तरह तरह के काढ़े आए हैं, उसके बारे में मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरी मतलब मेरी बहुत उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपका अगर उसमें विश्वास है तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उस कॉन्फिडेंस में रह के जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो हाइजीन, उसको आप नजरअंदाज ना करें, वो जरूर करें। बिल्कुल, तो अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप तमाम उपाय कर सकते हैं, तमाम जो चीजें बताई जा रही हैं, मसाले हैं, काढ़े हैं, वो जरूर अपना सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर शिखा महाजन पूछना चाहती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड रिसेंटली कैन स्टिल बी द कैरियर ऑफ द वायरस एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शन to others while being immune themselves? डॉक्टर नरेश, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, ये सवाल आप लेंगे कि जो शख्स हो चुका है अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव से होकर नेगेटिव हो उठा है, लेकिन क्या वो कैरियर हो सकता है? क्या वो अभी भी इन्फेक्शन फैला सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर साइंस के हिसाब से आप देखेंगे कोविड में, तो अगर कोई रिकवर कर गया है उसकी पॉसिबिलिटी फैलाने की हो सकती है। लेकिन ये कि जब हम रिकवरी के लिए टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट करते हैं तो हम थ्रोट स्वाब करके टेस्ट करके कहते हैं थ्रोट में नहीं है। अब मुश्किल कोविड की ये है कि हम लोगों को ऐसे लगने लगा है कि वो सिर्फ गले में या फेफड़े में ही जाता है, ऐसा नहीं है। पेट में भी जाता है, गुर्दे में भी जाता है, और ये देखने में आया है कि कुछ लोगों में, खासतौर बच्चों में, वो पेट में कुछ ज्यादा रहता है। तो अक्सर वो 2 या 3 हफ्ते आप अपर साइड लेके चलिए, उसमें वो जो है निकलना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में वो अगले हफ्तों तक भी वो उसको निकाल सकता है, मल मूत्र के द्वारा भी। तो उसमें जो है रिस्क आ जाता है कि जो हमारा ट्यूबेज सिस्टम है उसको भी हम जांच करते रहे और देखते रहे कि कहीं उसमें तो ये नहीं पनपने लगा हैगा। तो जहां तक ये इसके रहने की बात है, इनकी सवाल की बात है, जो लोग बीमार होते हैं उनके अंदर ये वायरस देर तक निकलता है, 2 हफ्ते क्या 2 महीने भी निकल सकता है। जो बीमारी से ठीक हो जाते हैं उसमें ये मुमकिन हो सकता है कि वो वायरस कुछ समय आगे तक निकलता रहे। ओके, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और इसीलिए कम से कम 2 हफ्ते का गैप दिया जाता है ठीक होने के बाद। अगर उनका कोई उनको सर्टिफिकेट देना है या प्लाज्मा लेना है या कुछ भी करना है, बट ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इसीलिए ये कहते हैं कि जब आप वॉशरूम भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि वहां से ये फैले नहीं, और वहां भी प्रिकॉशन हाइजीन की देनी चाहिए। Right. I mean, there's no replacement for precaution in any sort of a scenario. One has to social distance, one has to wear a mask, one has to sanitize one's hands. That is a given. The other things that might accompany that will be only add-ons. You cannot avoid any of these essentials really as far as protecting oneself is concerned. Now we have Avnish Parihar who's asking us on Facebook, you know, how long can the virus survive in the air if someone came in contact with a COVID patient? Initial treatment at home would be recommended. What should one be doing essentially, Dr. Dhiru Agarwal, if one has come into contact with a COVID positive patient, one knows that, should one simply home quarantine oneself and wait and see if any symptoms appear? There are 2 aspects to it. One is home quarantine. अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको एक अपने रूम में क्वारंटाइन का मतलब पर्सन बीमार नहीं है, लेकिन वो अपने को आइसोलेट कर रहा है एक तरह से, कि उसको अगर कोई साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो वो हम बहुत जल्दी डायग्नोज कर सकें। तो दिस इज होम क्वारंटाइन। इसमें उनको अपना टॉयलेट अलग यूज करना है, या अगर कॉमन टॉयलेट वाली बात है वो नहीं कर सकते हैं तो उसको हर बार सैनिटाइज करना है, जिससे कि दूसरे पर्सन को कांटेक्ट ना हो, क्योंकि आप अभी रिस्क में हो, हमें नहीं पता कि आप डेवलप करोगे या नहीं करोगे। दूसरी चीज यह है कि अगर एक सिंगल रूम में रहने अगर वो भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो एटलीस्ट 2 बेड्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और ये खास ख्याल रखने की बात है। और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं 10 डेज तक अगर कोई सिम्टम्स नहीं आया है तो मोस्ट लाइकली वो नहीं आएंगे। यूजुअली 5 डेज के बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। आइडिया इसमें यह है कि जैसे ही आपको फीवर आता है तो हम आपको एट द अर्लीस्ट डिजीज को पिक कर लें एंड प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ले लें।
दूसरा है जिस पर्सन को फीवर आ रहा है, सिम्टम्स कोई नहीं है, तो वो अपने को आइसोलेट करता है कि इल तो है लेकिन उसको अभी हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन कहते हैं। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें फॉलो करनी है। और बेसिक, जैसे डॉक्टर खिलनानी ने भी बताया कि हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज ऑफ मास्क, ऑल दीज आर टू बी फॉलोड फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज बीइंग क्वारंटाइन और ही इज बीइंग आइसोलेटेड। एक यहाँ पर कॉलर ले लेते हैं। जौनपुर से मोहम्मद अनीस अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए मोहम्मद अनीस। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी। मैं मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ जौनपुर से। मेरा सवाल सर ये है कि मैं एक शादी के फंक्शन में गया था सर, जहाँ से 20 से 25 लोग थे और मैंने मास्क बराबर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा मेरे करीब आ जा रहे थे सर। तो उसके बाद मैं घर आने के बाद मैंने सर अपना हाथ मुंह वगैरह धुला, 15-20 बार हाथ भी धुला, मुंह भी धुला। तो मुझे कितना रिस्क है सर? Okay, I think the question was that he went for a wedding where there were a lot of 25-30 people. Although he was cautious, there were some others who were not as cautious. So, in that scenario, what should he be doing? Dr. Khilani, would you like to take that question? हाँ नहीं, मैं समझ गया इनका प्रश्न। और इसमें ये है कि सारा मसला ये है कि वेदर देयर वाज उस जिस भी कांग्रीगेशन शादी में आप गए थे, अगर वहाँ कोई केस है कोरोना का, तब तो आपको रिस्क है। अगर वहाँ कोई केस नहीं है तो आपको रिस्क कम है। उसकी वजह ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमीटर भी है जो, तो उसका तो आप पता नहीं लगा सकते। इसलिए आपके लिए अच्छा तो ये होता है कि आप ना जाते वहाँ पे, लेकिन आप चले गए तो अब आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं कि आपको जब भी कभी जो सिम्टम जो सबको पता है कि बुखार, खांसी, नाक का बहना, शरीर में दर्द, स्मेल अगर आपकी ऑल्टर हो जाए या टेस्ट ऑल्टर हो जाए, तो आप एकदम आगाह हो जाए और अपने आप को आइसोलेट कर लें और फिर टेस्ट कराएं। अदरवाइज मेरे ख्याल से और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। जी यहाँ पर एक सवाल हरि कृष्ण पूछना चाहते हैं कि वो पिछले 4 महीने से अपने घर में ही हैं और वो कितने दिन तक इतना रह सकते हैं अपने घर में, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन है, हार्ट पेशेंट भी हैं, लेकिन क्या इतने दिनों तक सिर्फ घर में बंद रहने से भी उनकी सेहत पर असर हो सकता है? You want me to answer that question? जी डॉक्टर खिलानी। हाँ, तो ये बहुत ही अहम सवाल है और ये एक्चुअली हम सबको अफेक्ट कर रहा है। सीनियर सिटीजन को जिनको डायबिटीज है, बड़ा कहना आसान है कि भाई घर में ही रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने। मोबिलिटी कम हो जाती है, एपिटाइट कम हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। तो ये सब ये कॉमन चीजें हैं और ये बहुत ज्यादा हो रहा है और इसलिए अजीब तरह के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। बाउल्स इरिटेबल हो जाते हैं और आदमी को बार बार मोशन आने शुरू हो जाते हैं। ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब इस समय अनलॉक तो हो गया है ना। हम कहते हैं कि दिस इज नाउ इट इज टाइमिंग ऑफ सेल्फ लॉकडाउन। अब सेल्फ लॉकडाउन में ऐसे नहीं है कि आप बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते। आप मास्क लगा के, मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग अगर मास्क लगा के अगर वॉक करने जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, आके अपना हाथ धो लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बाकी सब ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी सामान बाहर से आता है, बिना बात के दुकानों पे मत जाएं, इधर उधर की चीजें खरीदने, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर जाएं। लेकिन अब फिजिकल एक्टिविटी को चाहे घर में चाहे बाहर, जो लोग जिनके पास ट्रेडमिल चाहे घर में साइकिलिंग है, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। नहीं तो दूसरी बीमारियां जो इनएक्टिविटी की है वो आपको पकड़ जाएंगी। बोन्स की डिजीज, हार्ट की डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ जाएगा। तो अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल रखें, चाहे आउटडोर करें चाहे इंडोर करें, maintaining all social distancing and using a face mask and using hygiene. Okay, we have another caller with us. Devika is calling us from Karnataka. Go ahead, Devika, ask your question. सर नमस्ते सर, मैं देविका बोल रही हूँ मैसूर से। नमस्ते सर मेरे हस्बैंड को प्रोटीन यूरिया की बीमारी है सर। उनको किडनी बायोप्सी करवाया था तो रिजल्ट आया था IgAN 45 इयर्स है उनका, लेकिन उनका क्रेटिनाइन लेवल सब नॉर्मल है सर, 1.0 1.1 है और सिर्फ प्रोटीन लॉस दिख रहा है और काफी नॉर्मल है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं।
मेरा सवाल है कि बीपी भी सब नॉर्मली आ रहा है सर, 6 महीने से नॉर्मली है, 120 130 ही है, शुगर नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि अगर उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो क्या वो रिकवर हो सकते हैं ना सर? क्योंकि डर लग रहा है कि बोल रहे हैं ना कि अगर इससे सीकेडी प्रॉब्लम ऐसा कुछ, लेकिन हमको पता चल के 4 महीने हुआ है कि उनको IgAN की प्रॉब्लम है। Okay, you have a valid apprehension. Dr. Naresh Gupta, would you like to answer her question? Yeah, I understand Devika's predicament, क्योंकि कर्नाटक में पिछले एक हफ्ते से जैसे हमने कहा केस इतने बढ़ रहे हैं कि हर किसी को चिंता आ रही है कि मेरे को होगा, और अगर मेरे को पहले कोई बीमारी है तो उसमें कोई मेरे को ज्यादा रिस्क होगा। देखिए, जहां तक होने की बात है, आपने भी कहा और सबने कहा कि किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये जानकारी हमारी उसमें नॉलेज में है कि सब बीमार जो है बीमारी ला रहे हैं, कुछ बीमार फैलाते हैं। और उसमें जैसे एक सवाल आया था मैरिज फंक्शन का, जो क्लोज स्पेसेस हैं जहां पे कि वेंटिलेशन नहीं है, या क्राउडेड स्पेसेस हैं जहां पे कि लोग एक से नहीं कई फैमिलीज से आए हुए हैं, या फिर ये कि क्लोज कांटेक्ट वहां डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाता है और ऐसी जगह में आप ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपको रिस्क रहता है, इनको भी रहेगा और बाकी सबको भी रहेगा। जहां तक रिकवरी की बात है, ज्यादा जो है वो रिकवर कर जाते हैं, 80% बिना किसी तकलीफ के घर पे क्वारंटीन करके रिकवर कर जाते हैं, 20% अस्पताल में रिकवर कर जाते हैं, और सिर्फ 2-3% को मुश्किल आती है। और यही सिनारियो इनके ऊपर लागू होगा। मुझे मालूम नहीं देविका जी के हस्बैंड की उम्र कितनी है, या वो कोई दवाई ले रहे हैं, बट हम ये मान के चलेंगे कि इनको ये चिंता करनी चाहिए कि इनके हस्बैंड नहीं रिकवर करेंगे, इनके हस्बैंड रिकवर करेंगे उसी एक्सटेंट तक जितने की बाकी करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि उनको बीमारी नहीं हो और वो सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करें, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Okay. We have another question coming in on Facebook. Satwinder Singh wants to know, can the virus evolve after transmission from patient to patient? Is that possible, Dr. Gupta? Yeah, you see, the virus can evolve, but nobody has seen now or earlier that this virus can evolve inside a human being. Human being is not the factory. एक सेकंड यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे हरदीपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है, सीधे रुक करते हैं इस प्रेस वार्ता का। Looking at my own notes, and I find this is the 6th interaction that we are having on civil aviation related matters. I don't know how the other ministries are faring in terms of number of these press interactions. Only health. Only health will be leading. So I think we must be. But you know, in fairness, these press conferences become important because of the COVID. And this is a new format. It gives me the opportunity, rather it gives my senior colleagues in the ministry and all the related organizations the ability and privilege to interact with you. Not only those of you who are present here physically, but many of you are linked online, I'm told. And I'm sure we'll be able to interact in not in a question and answer, but in a mode where we will have an opportunity to explain exactly what the challenges were, where we are today, and how we want to proceed ahead. I just want to recall that these press interactions have been earlier on 6th March, 2 April, 5th May, 21 May, 20th June. We explained the measures which were taken at the airports. We outlined the commencement of the Lifeline Udan mission, which was able to, I wouldn't say complete its mission, but mature to a point where the remaining cargo could be carried out by domestic flights when they started, or we were sending our carriers to bring back 1,500 tons of cargo from outside and take 30 tons of cargo from here in. Then we talked about the resumption of domestic operations, and we also, I want to just remind you, outlined the beginnings of the Vande Bharat mission. Now, I just want to submit some figures to you. I will request Rajiv Jain. Where is he? No. I have another Rajiv Jain who is the ADG PIB. All the figures that I'm using, just
put them on our ministry's website so that those of our colleagues who want to, quote those, they have easy access. Now, these figures change every day. On the Vande Bharat mission, I just want to remind you that when we started, we had modest beginnings. The demand assessment which we were working on was that there were approximately 190,000 Indian citizens who were in distress or were stranded in other countries. Why did we have this figure of 190,000? This is a figure which was given to us by the Ministry of External Affairs. Why did the Ministry of External Affairs give us this figure of 190,000? Because those were the number of people who registered in the missions and our consulates throughout the world. So we planned a mission according to a program, according to roughly having 190,000 people to be brought back. Now, I just want to share with you that the total number of people, citizens repatriated as of yesterday, 15th July, those are the latest figures I have, is 687,467. 687,467. You know, when we carried out the operation to evacuate people from Kuwait, this was in the year 13th August to 11th October 1990, and the total number of people who were evacuated were, I think, something like 170,000 from Oman to Mumbai, and they operated 448 flights. I think Air India then entered the Guinness Book of Records when it was 170,000. Today we have done 687,000, and this figure increases by the day. Every evening my social media team gets the approval from me on an outline of how many approximate, and then when the figures come in at 23:59, when the last figures come in, they update it, and that is when it goes out midnight or early morning. Out of this figure of 687,000, the Air India group has transported 215,495. Indian private carriers have brought back 12,258. But wait a minute, that private carriers have also operated private charters. So many of them chose to fly the charters because the Vande Bharat figures were kept low in order to make them affordable, especially from the Gulf, where we were charging 13,000, and the charters were obviously charging market rate. So charters brought back, Indian charters brought back 135,000, 135,000. Foreign charters brought back 211,361. So this is the total figure of 687,467. When we go into the question and answer session, I will share with you my ideas, both in terms of what we have already agreed to, in terms of the establishment of air bubbles between India and the other destinations where there is a fairly heavy demand for traffic. Some of these air bubbles, we have completed the negotiations. In the case of other air bubbles, we are at an advanced stage. Why do we need to establish air bubbles? Well, ideally, and I've been stressing this in every interaction with you, all these arrangements depend in the ultimate analysis on the behavior of the virus. If the virus was suddenly to atrophy or to dissipate and we have normal operating environment, we would just open it up to normal traffic. But even domestically, as you are seeing, we opened up, I think on 25th May, and we are at 33%. We want to do more, but many of our cities are going into additional restrictions. Some lockdowns are taking place. So we have to navigate through a difficult terrain which is affected by the virus. And this is also the case with other places, other cities in the world where we normally fly to.
So I will give you an introduction and I will tell you where we are on the air bubbles. Till international civil aviation can reclaim its pre-COVID situation in terms of numbers, I think the answer will lie through these bilateral air bubbles, which will carry as many people maybe as possible, but under defined conditions. Because many countries are still imposing entry restrictions, as are we. It's not that anyone can travel from anywhere to anywhere. You need permission. In the case of some countries, even if you have a visa, a valid visa, even if you have a valid stay permit, you would still be required to obtain an additional clearance. Now, till those restrictions are in place, I think air bubbles is the answer to going forward. I would like to also broaden the format of our interaction, and we'll have many more, of course, by saying that we have introduced in today's interaction a presentation on drones. Now, drones will increasingly come to occupy a very important space in our civil aviation, not only in terms of our skies, but delivery of essential services. They are being extensively used in operations against what are called locusts, and I think this presentation will cover it. We have a presentation from Air India. Once we are through these, we will have, I think, more than enough time to get questions from you, to interact, to find out what the future course of action will be. And as I said, my senior colleagues here from the ministry and related organizations, we are happy to do that. Can we now go to the Air India presentation and video? We'll have the film, sir. It's a 4-minute film. You can see it there. थमने लग जाती हैं राहें जहां, वहां से शुरू की हमने अपनी बारी है। तिरंगे के तीनों रंग से रंगे हैं हम भी, और हिम्मत से तो हमारी पुरानी यारी है। दुनिया की इस किताब में कुछ किस्से हमने भी लिखे हैं, जोश की सियाही से नए पैगाम हमने भी लिखे हैं। खतरों से लड़ने की हर बार करी पूरी तैयारी है। Welcome back. You are watching Dr. Speak, and just before that we were watching the Union Minister for Civil Aviation giving us an update on the mission that was being carried out to bring back Indians from abroad. It's gone from strength to strength, and he said all in all 670,000 people have been brought back ever since this entire scenario of COVID-19 started unraveling around the world. He was also giving update on how air bubbles are being worked out between different destinations so that international travel can also be restored. But we're now to Dr. Speak, and we have Dr. Khilnani with us, and people have been sending in their questions as well on Facebook and Twitter. Avnish Parihar is asking how long can the virus survive in the air if someone came in contact. I think we asked that question. How to cure allergic cold which occurs during early morning and late night. Venkana Huggi is asking this question. I think he's concerned about how susceptible are people who have this problem, rhinitis and other things to COVID-19. Dr. Khilnani. So, giving a short answer to this, the person who has got allergic rhinitis, there is no evidence that they are more susceptible to COVID. That is one, unless they are on some high-end systemic steroids, which they generally don't get. But other thing is that discrimination between the symptoms of allergic rhinitis and COVID can be difficult. Now, a person who has a tendency to allergic rhinitis, if he gets cold and running nose, blocked nose, the type that he was getting before, there's nothing much to worry about. But on the top of it, if he gets a body ache and then he feels a sore throat and he feels feverish,
even if he doesn't get fever, if he feels feverish and he is chilly, and then he needs to worry about that this can be COVID. This will also depend upon where he is. Is he in Maharashtra? Is he in Delhi? Is he in Ahmedabad? Is he in Karnataka, where the prevalence of COVID is high? Then he needs to worry more and needs to get him tested. But if, as long as there is no fever, no feverish feeling, no body ache, no sore throat, no loss of taste or sense of smell, they shouldn't worry about it. Right? Okay. बिल्कुल। एक अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सृष्टि का वाराणसी से। सृष्टि पूछना चाहती हैं कि इसके सिम्टम्स को लेकर अभी भी जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी नया सिम्टम ऐड हुआ है, अगर हम आरोग्य सेतु की बात करें, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, लेकिन अगर सर दर्द होता है तब भी ऐसा फील होता है कि कहीं कोरोना का डर तो नहीं, कहीं जब थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी ऐसा महसूस होता है। नॉर्मल अगर एलर्जिक इस वक्त कोल्ड और हो रहा है, जो कि बार बार आप एसी में जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं, तब भी आपको ऐसा महसूस होता था, तो कब हमें ऐसा होना चाहिए कि हम ये डिसाइड कर पाएं कि हाँ हमें कोविड का टेस्ट कराना है? डॉक्टर नीरू। I think this was a better question for Dr. Khilnani. ऐसा है कि अगर फीवर है, सोर थ्रोट है, सिर में दर्द है, सेंस ऑफ स्मेल चला गया है, सेंस ऑफ टेस्ट चला गया है, सिर दर्द क्यों हो सकता है या हैवी फीलिंग, हेडेक वाली फीलिंग क्यों हो सकती है? कि अगर इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो रहे हैं तो हेडेक हो सकता है। इसीलिए उन्हें कहा कि कई बार ऐसा होता है, ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें जरूरी नहीं कि फीवर सभी में आए, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना चाहिए, और अगर कम आ रहा है तो कोविड को हाईली सस्पिशन कैटेगरी में लेना चाहिए। ओके डॉक्टर अग्रवाल, आपके लिए एक और सवाल है। तनुज मेहता is asking what extra preventive steps need to be taken by a kidney transplant patient, and if they suffer from coronavirus, what are the immediate steps that are required to be taken? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में कोरोना का होना एक ड्रेडफुल सिचुएशन है। अपनी तरफ से 3 जो हमारे मेजर स्टेप्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस एंड वॉशिंग, हैविंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन फूड, एवरीथिंग फ्रेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट इम्यूनोसप्रेस होते हैं तो उनको जरूरी नहीं कि फीवर हो, लेकिन अगर उन्हें सोर थ्रोट भी हो रहा है तो उसको जो है उन्हें उस पर ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जहां पर भी हैं उनके कांटेक्ट में जाएं, जिससे वो अगर है तो उसको वो टेस्ट करा के उसको कंफर्म कर सकें। और ये भी चिंता बनी रहती है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो गया और हम एसिम्प्टोमेटिक हैं तो क्या होगा? दिस पर्सन इज इंक्वायरिंग अबाउट दैट एज वेल। ऐसे पेशेंट को एक तो कि होम क्वारंटाइन तो करना ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पेशेंट इम्यूनोसप्रेस ज्यादा होते हैं तो उनमें इन्फेक्शन फ्लेयर अप होने का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इसमें और नहीं है, वो वही है जो सब लोगों के लिए हैं, लेकिन आपको अपने बारे में थोड़ा सा और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि जितने भी कोविड के सिम्टम्स है इनमें कोई जैसे सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है, सेंस ऑफ टेस्ट कम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है ताकि आपको वो टाइमली मैनेज कर पाए। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट में इम्यूनोसप्रेशन को भी कम करना पड़ता है, मेडिसिन को मॉडिफाई भी करना पड़ता है, सारी मेडिसिन हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड मेडिकेशंस ट्रांसप्लांट पेशेंट में यूज करते हैं। तो इसमें आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। अगर आपको जरा भी सिम्टम्स लगते हैं तो उनके टच में रहिए, प्लस अपने लिए अलर्ट रहिए, अपने सिम्टम्स को वॉच करिए। जी डॉक्टर नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे एक सवाल ले लेंगे। यहाँ पे खगेंद्र पूछना चाहते हैं कि एक नॉर्मल फ्लू में और कोविड 19 में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? यहाँ पर जो लोग घर पर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, डी कोल्ड हो गया या बाकी जो कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन है, क्या उससे कोरोना के जो लक्षण है उन्हें सप्रेस किया जा सकता है या सप्रेस हो जाएंगे वो? देखिए, लक्षण सप्रेस करने के लिए तो दवाई आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन इन्होंने जैसे कहा कि फ्लू में और कोविड में आप कैसे अंतर करेंगे। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि कोविड में बाकी सब बीमारियां जो है धूमे पड़ गई हैं। फ्लू से भी डेथ होती है, उससे ज्यादा नंबर की डेथ होती है, उसका इलाज भी उपलब्ध है, उसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो ये ना सोचे कि फ्लू को आप नजरअंदाज कर देंगे कोविड की कॉज।
जहां तक सिम्टम्स की बात है, लक्षण की बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें लक्षण है उसका रूप बदलता जा रहा है। रूप क्या बदलता जा रहा है? जब हमारे एक्सपीरियंस बढ़ता है, नए नए केसेस नंबर आते हैं, तो हमको पता चलता है कि कितने सारे लक्षण हो सकते हैं। बुखार भी हो सकता है, बुखार सब में शुरू में आएगा, ये भी जरूरी नहीं है, सिर्फ दो तिहाई में आता है। खांसी आएगी, गला खराब होगा, कमजोरी आएगी, सिर दर्द होगा, मसल पेन होंगे, रैश की आपने बात करी, मुंह में होगा, आंख में होगा, गले में होगा, कहीं पे भी हो सकता है, डायरिया का दिक्कत होगा। तो इसमें सारे सिम्टम्स ऐसे नहीं है जो फ्लू में देखे जाते हैं, लेकिन फ्लू में और इसमें कॉमन सिम्टम ये माना जाता है कि आपको बुखार है या बुखार वाली फीलिंग है, खांसी है या गला खराब है या सांस चढ़ने की तकलीफ है। उसमें ये कहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए कि ये फ्लू की तरफ जा रहा है या कि कोविड की तरफ जा रहा है। हालांकि आप डॉक्टर के पास आएंगे, वो थोड़ी और हिस्ट्री लेगा और ये भी देखेगा किस चीज की प्रेवलेंस उस सोसाइटी में उस समय ज्यादा है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी को ये तकलीफ है, उसको ये पता करने की तो जरूरत है कि ये कोविड है कि नहीं है, बट उसके ये उनको पता करना चाहिए कि किस वजह से है। अगर वो कोविड नहीं है तो और क्या है, ये आप नहीं भूलें। और उसके लिए आपको टेस्ट या डॉक्टर से सलाह लेके जो वो टेस्ट बताएगा, मशवरा करेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आमतौर से जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, इनके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए कॉमन मैन को कहा जाता है कि ILI या इन्फ्लुएंजा लाइक। तो खुद से दवाई खाने से अच्छा है कि आप जरूर डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर से मशवरा लें। जी, हमारे पास और भी सवाल आ रहे हैं। राजन माथुर इज आस्किंग, माय वाइफ इज allergy to dust, pollen, curd, heat, etc. And when she gets this allergy, she develops short breathing. Nowadays, she is having short breathing for the last 15 days, but she has no other problems like fever, sore throat, etc. She also does not have short breathing during sleep. Does she need testing for coronavirus? Dr. Khilnani, could you answer that? Yes, I would like to answer, but उससे पहले एक मैं आपकी परमिशन से एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये जो एक धारणा बन गई है कि सब लोगों ने एक ऑक्सीजन सैचुरेशन की प्रोब लेके घर में रख रखी है जी। और फिर सैचुरेशन हर 2 घंटे देखते रहते हैं, 97 हो गया, फिर 95 हो गया। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सैचुरेशन प्रोब का रोल तभी शुरू होता है जब कोविड का डायग्नोसिस हो जाए जी। सैचुरेशन प्रोब कोई डायग्नोसिस करने का तरीका नहीं है। तो कई बार सैचुरेशन लगाते ही कई बार 82 की रीडिंग आ जाती है, वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज अपना सैचुरेशन देखना बंद करें। उसका रोल डॉक्टर की सलाह से जब वो कोविड आपको हो उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए आता है। तो ये मैं कहना चाहता था, इसलिए बीच में। अब इनका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि ऐसा लगता है कि जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं कि इनको एलर्जी है और एलर्जी की वजह से इनको एस्थमा है, जिस वजह से उनको सिम्टम्स हो। एक तो बात यह है कि ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि एस्थमा के पेशेंट को कोविड ज्यादा होता है। तो अगर इनको सिर्फ वही सिम्टम्स हैं जो पहले ही होते थे और उनको जो भी इनहेलर या एंटी एलर्जिक दवाइयां लेते हैं तो वो लेते रहे और डॉक्टर की सलाह से उनको बढ़ाना है तो बढ़ा। लेकिन अगर उसके साथ में अगर उनको गले में खराश हो रही है, शरीर में, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या बुखार की फीलिंग हो रही है, ये सिम्टम हम 50 बार 1000 बार बोल चुके हैं, बिल्कुल, तब इनको या फिर कांटेक्ट की हिस्ट्री या किसी कोरोना के पेशेंट के साथ कांटेक्ट हो गया हो, तभी उनको डरने की जरूरत है। और दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि ये सोच के कि आप को एस्थमा है और आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, उनकी मात्रा कम करने की ये सूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एस्थमा के पेशेंट सिस्टमिक स्टेरॉइड जैसे वाइसोलोन, बेटनिलॉन, डेक्सोना, इस तरह की दवाइयों पे होते हैं, उनमें उनको इम्यूनोसप्रेस्ड मानना जाता है। उसमें जो उनकी प्रेजेंटेशन होगी, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि उनकी प्रेजेंटेशन पे थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उनको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जो इनहेलर्स पे है उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उतने उनकी रिस्क उतनी है जितनी किसी हेल्दी आदमी। जी, चलिए, राजन माथुर के साथ साथ रेशमा खन्ना का आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, साथ ही ये सवाल यहाँ पर आ रहा है दीपाली धैया का कि टिश्यू पेपर एक्ट एज अ मास्क टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। मास्क को लेकर और भी सवाल यहाँ पर है कि किस तरह का मास्क हमारे लिए सही होगा? क्या हर वक्त N95 या फिर
ज्यादा से ज्यादा जो 3 लेयर We have another caller as well. Radha is calling from Delhi. So two questions really, Dr. Gupta, if you can answer them. One is related to masks that Jaya was asking, and Radha will ask the next question. Go ahead, Radha. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा और बहू IVF के लिए बैंगलोर से मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन दे आर स्टेइंग इन अ होटल. कल उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया विच इज नेगेटिव, बट दे आर स्टेइंग इन अ होटल. कल उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा. कैन दे कम टू माई प्लेस आफ्टर 1 वीक? एक हफ्ते के बाद क्या वो मेरे पास वहां से क्वारंटीन करके होटल से मेरे पास कुछ दिन रहने आ सकते हैं? डॉक्टर, जो क्वारंटीन जो नेगेटिव केसेस हैं उनका क्वारंटीन कहीं पे भी करा जा सकता है, और इसकी लिबरलाइजेशन हो गई है कि आपको जरूरी नहीं है कि वहां पे रखना है. जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, आप मास्क लगा सके, हैंड वॉशिंग कर सके, वहां पे हो सकता है. वो आपके यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी जगह काफी है और उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर सिर्फ क्वारंटीन मतलब जिसको कि अभी कोविड नेगेटिव है और सिम्टम्स नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जी, इसके साथ एक मास्क का लेके भी सवाल था. मास्क का सवाल है, वहां पे मास्क आप मल्टी लेयर मास्क जो पहनते हैं वो ठीक है. पहली चीज तो ये है कि जो N95 है वो सब लोगों को जरूरत नहीं है. N95 की परेशानियां भी आती हैं. लोग ये मानते हैं कि जो जितना महंगा है, जो जितना एडवांस है, या कोई डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत बेहतर होगा. ये बात ठीक नहीं है. उनके लिए चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा खतरा है जब वो उसका इलाज करते हैं कोविड के मरीज को, बनिस्बत की जब पब्लिक कोविड के मरीज के ताल्लुक में आती है, तो उनके लिए वो मास्क की जरूरत नहीं है. N95 मास्क लंबे अरसे तक लगाना बड़ा मुश्किल होता है. उसमें आपको सांस लेने में भी दिक्कत आती है और उसको ठीक तरह से लगाने में मुश्किलें आती हैं. आप 3 लेयर मास्क लीजिए, सिंपल सर्जिकल मास्क लीजिए, कपड़े का बना के लीजिए, मल्टी लेयर मास्क लीजिए. ऐसा मास्क लीजिए जिसमें कि आप धो के उसे सुखा सकें या रख सकें या उसको स्टरलाइज कर सकें. तो मास्क आप कोई लीजिए, लेकिन मास्क में ये ध्यान रखें कि वो नाक से और साइड से और नीचे से वो आपको पूरी तरह से कवर करे. जब तक वो आपको पूरी तरह से कवर कर रहा है और सांस में लेने में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप उसको लगाएं और रोज लगाएं. और जब बाहर जाएं तो बिल्कुल बेनागा उसको लगाएं. उसको आप उतने घंटे तक लगाएं जितने घंटे तक जरूरत है, और इतनी जल्दी आप उसको साफ करें जितना उसको इस्तेमाल करा है. अगर आप बाहर गए जहाँ पे कि 3-4 घंटे में आपने कहीं पे मार्केट में या कहीं पे ऐसी जगह गए, जैसे रुपए के मैरिज फंक्शन में गए, तो आगे तुरंत आपको धोना पड़ेगा या स्विच करना पड़ेगा. अगर आप घर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पूरा दिन चलेगा और कपड़े की तरह आप अगले दिन भी उसको धो सकते हैं. तो मास्क जितना सिंपल होगा उतना इस्तेमाल करना सिंपल होगा, और उसी पे आप स्टिक करें. और ये देखा गया है कि उसके फायदे उतने ही हैं जितना कि आप N95 लेंगे अगर आप पब्लिक में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ और सवाल लिए जाए आज? जी, एक सवाल आप ले लें. Khagendra Kutare is asking, he's got 2 questions really, but they're related, and he's also saying, once again he's trying to find out if it's how can one distinguish between common cold and COVID-19. And he's also saying that he had cold, fever, headache and cough one day, but the next day the fever and headache were gone. So he wants to know if that's normal flu or is it COVID. Dr. Agarwal, if you could answer that. It's a confusing situation, but अगर फीवर एक दिन के लिए आया है और उसके बाद कॉफ परसिस्ट कर रहा है, तो और वो किस जोन में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे प्रेवलेंस कितना है, वो इम्पोर्टेंट है. अगर आपके एरिया में कोविड स्प्रेड हो रखा है तो ये केस बनता है कि आपको कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए. लेकिन आसपास नहीं है तो आपको 5 डेज वेट करना चाहिए. 5 डेज के बाद कराएं तो इनफैक्ट बेटर होगा, क्योंकि जो भी सिम्टम्स हैं और जो PCR टेस्ट है यूजुअली 5 डेज के बाद ही पॉजिटिव होता है. उससे पहले कराने से बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको. तो यू वेट फॉर 3 more days. Once after 5 days, if you still have symptoms, go for the PCR test. Okay. And Dr. Khinani, people were also asking, they have elderly parents at home, and they were asking that they've been inside, cooped up inside for 4 months now at least, and they were wondering if they can take them out in their cars, with the windows rolled up and air conditioners on. Is that safe? Yeah, it's absolutely safe. They should wear a mask, and don't take them to the crowded places like malls or restaurants or for shopping. As long as they go out in their own car, it is absolutely safe, and they should go out. I've already said that they should go out in the garden for a walk if they are
if they wish to do that. जी, अगर गाड़ी का शीशा चढ़ा हो तो क्या मास्क उतार भी सकते हैं? नहीं, पर वो देखिए बात ये है कि सारा मसला ये है कि गाड़ी में वो अकेले तो नहीं होंगे ना, बाकी 3-2-4 लोग भी अगर होंगे। अकेले हैं तो उतार सकते हैं। अकेले तो उतार कोई तो, जी बिल्कुल लेकिन गाड़ी अपनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। Because Okay, we're completely out of time now. public transport जी. can be arrested. Okay. We're completely out of time. Thank you so much for joining us today, Dr. Khilani, Dr. Agarwal and Dr. Gupta, and for calling us and writing to us on Facebook and Twitter as well. Thank you so much. I'm afraid we've not been able to take all the questions today. We did have some other news coming in as well, but we will try and take them tomorrow. Do join us again and stay safe. बिल्कुल, तो सकारात्मक रहें, डरे नहीं, वहम ना पालें, लेकिन सतर्क भी रहें, मुंह को हमेशा ढक कर रखें और 2 गज दूरी बनाए रखें। फिलहाल डॉक्टर स्पीक में इतना ही, कल फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। 2 बजे। नमस्कार।